that the education system is already dying and हाँ. the government is imposing taxes not only on school books but also on the school teachers. अगर आपने टैक्स पे भी करना है IMF को तो आपको क्यों लगता है कि स्कूल के बच्चों के अंदर के जो है किताबें चार्ज करने से आपको ये नहीं समझ आ रही कि ऑलरेडी माँ बाप बहाना ढूंढ रहे हैं इस मुल्क के अंदर कि वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दें. The idea of an educated mother is to help their children. मैं तो अपने आप को उस टाइम पे help नहीं कर सक रही थी. So it was a nuisance for me. The father never steps in to teach their kids. It's always on the mother. You have to teach your kid, and let's not pretend like this is something like this is the truth. Seriously, अगर शहजाद रॉय ना होता तो फिर जो है ना ये मसला आगे भी follow through ही करेगा. So ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसका आपको you're not able to understand what you're studying और आपके लिए बोझ ही बन जाए. तो exactly. Assalamualaikum everyone, welcome to Cocktail. I am Shiza and we have Amna with us. और आज हम बहुत मजे की गपशप करने वाले हैं on शहजाद रॉय. So Amna, what do you think? Shehzad Roy is basically launching an initiative. He's the cutest ever. That is what I was waiting for. He's the cutest ever. He's my favorite only. Okay, so and he never ages as well. You know, he's the Manu Baloch. His skincare routine, yeah. If he really wants to get people behind him, he needs to expose his skincare routine. He needs to tell us what he's doing. If it's all the power of God and that he's actually an angel, he needs to come out for the angel that he is. Yeah. मैं अपने बचपन से शहजाद रॉय के गाने सुनती आ रही हूँ. मतलब वो तब ना गाने गाता था तो अब अंदाजा लगाओ अब मैं बूढ़ी होने वाली हूँ. So he's like really old, but then he looks fully 22. He totally looks like a 22-year-old boy. मुझे लगा तुम कह रही हो I look 22. Anyway. Oh, you look 20. Okay, thank you. 20. So anyway, Shehzad Roy, he's saying कि tax जो है books से खत्म करो, and the government has responded in a very affirmative kind of a thing, and they say, oh, you're right, and then he says, if you raise your voice and things happen and so on. So बस ऐसा है. So Amna, what do you think? I think he's the only person. He should be the only one running the country. We should throw everyone out of Pakistan and he should be making the decisions for everyone here, because this is the only man who cared that the education system is already dying and the government is imposing taxes not only on school books but also on the school teachers who are teaching at these institutions and cutting 25% more of their income and thinking that it's completely okay. This is like, ye theek hai, fit hai, ye kar lo, good job. That's true. Like, no, I don't think so. I mean, when you say he's the only one who should be running the country, I mean, I don't really see that much floating a bit, because मेरा ये ख्याल है कि जो लोग हैं ना, I mean, Imran Khan, as long as he was making Shaukat Khanums here and there, and normal college यहाँ वहाँ बन रहा है, people were really happy about it. But when it comes to power, then there's politics is dirty world over, so it becomes very problematic. I think कि अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि इमरान खान शौकत खानम बनाता रहता ना, तो और इस किस्म के काम करता रहता, तो जो फिलैंथ्रोपी उसकी थी, तो I mean that is what works for us. हम वही चाहते थे कि वही वो करे. I mean वो जब पॉलिटिक्स में आ गया, वो गंद बुलंद वही सब कुछ उसने भी करना स्टार्ट कर दिया, किया नहीं किया, that's another debate. But I mean when जब तुम खुद कीचड़ में छलांग मार दोगे तो ऑफ कोर्स तुम भी गंदे हो जाओगे ना कुछ. It's not possible that you will not be at all. So वो वाला थोड़ा सा है. मुझे लगता है कि शहजाद रॉय he'll be really smart, at least पाकिस्तान में, if he doesn't come into politics और वो अपने सोशल वर्क इसी तरह से जारी रखे. I mean आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि so he is the one जिसने even उसने ना बहुत पाकिस्तान में गाने भी इस तरह के नहीं बना करते थे. उसने गाना बनाना एक स्टार्ट किया कि तुम तो सिग्नल पे नहीं रुकते हो, तुम मुल्क क्या सही करोगे, something along those lines. So public service messages basically. Yeah. So I think that's really interesting. He wants us to progress as a nation, and if he sticks on this path,
तो प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू गो समवेयर. आई मीन इसका एक आपको बता रहे, एक तो इसका जिंदगी ट्रस्ट है, दैट इज हिज स्कूल सिस्टम. सो मैं पर्सनली एक दो लोगों को जानती थी, जो बच्चियां जो कि ना इसके स्कूल में जाया करती थी, उनको किताबें भी मिला करती थी एंड यूनिफॉर्म भी मिलता था, पैसे भी मिलते थे कि भाई स्कूल आया करो. तो दैट वाज लाइक एन इंसेंटिव फॉर देयर पेरेंट्स टू सेंड दोज गर्ल्स टू स्कूल. सो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा अच्छा था. और मैं आज से 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ. सो आई मीन एंड दैट्स द ओनली एजुकेशन दोज गर्ल्स एवर गॉट. तो वो एक बड़ा एक अच्छा उसका था. अब तो आई एम श्योर जिंदगी ट्रस्ट जो है वो बहुत आगे तक चला गया होगा. एंड इसी के साथ साथ आपको पता है there's another initiative that he has that's I mean I don't know if it's his initiative or he's involved in that initiative, nonetheless. So basically वो initiative है दूरबीन का. दूरबीन is basically where they train teachers and they say कि you know teachers को जो teachers की salary है that should be equivalent to a bank manager or a banker. ठीक है. So I mean a banker earns well in our country. So I mean they're talking about uplifting teachers, और मेरे ख्याल से that thought should go a really long way, because पूरी दुनिया में जो टीचर्स होते हैं ना, जो स्कूल टीचर्स होते हैं, जो अर्ली ईयर्स के टीचर्स होते हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं. These are very well paid jobs. These are really looked up to and highly rewarded as well. हम लोग की जो एजुकेशन है वो इसलिए भी सफ़र करती है बिकॉज यू नो कि शादी नहीं हो रही टीचर बन जाओ, अच्छा कुछ करने को नहीं है टीचर बन जाओ, अच्छा कोई नौकरी नहीं मिल रही तो चलो टीचर बन जाओ. एंड स्पेशली स्कूल की टीचर्स जो होती हैं. सो आई मीन आई डोंट वांट टू शेम देम, बट द थिंग हियर इज के हमारे पास हमने ये एक हमारा माइंड सेट ये बना हुआ है. आई मीन आई वाज वंस टॉकिंग टू समबडी और उसने कहा कि हाँ तो टीचर बनने का क्या है, तुम कोई जो किसी को कोई नौकरी नहीं मिलती वो टीचर बन जाता है. सो आई थिंक ये हमारा एक अलमिया है और हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है. एंड ही इज वन पर्सन हु एक्चुअली थॉट अबाउट नॉट जस्ट मेकिंग स्कूल्स. आई मीन मेकिंग स्कूल्स तो जो था, आई मीन वो तो इमरान खान भी आपके नमल कॉलेज वगैरह बना रहा था. accessible, making schools accessible for everyone. Yeah, accessible, and then thinking about teachers as well. Teachers की well-being जो है ना उसके बारे में सोचना I think is really really important at this point. तुम्हें क्या लगता है? मेरी सारी तकरीर मुझे लगता है that he is an angel sent by God to Pakistan for some reason. हमने शायद कुछ अच्छा किया होगा, because सिर्फ वही बंदा सेंस मेक करता है, सिर्फ वही इनिशिएटिव लेता है towards any betterment. कोरोना इनिशिएटिव से लेके पानी फाइट करना लोगों को, लाइक सलीका तमीज़ सिखाना, लाइक स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स राइट, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हाईलाइट करना, हर चीज़ के अंदर. दैट गाय इज़ जस्ट द नंबर वन पर्सन दैट यू नो यू गो टू एंड ही इज़ गोइंग टू एक्ट फ्रॉम अ जेन्युइन ऑथेंटिक प्लेस. ठीक है. और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये एक्चुअली बच्चों के बारे में सिर्फ कंसर्न नहीं है, सिर्फ बातें बोलता नहीं है, वो एक्चुअली कुछ करके दिखाता है. ही हैज़ इन्वॉल्व्ड ऑल ऑफ हिज मनी, all of his earnings towards actually raising funds for these kids. He has involved people in it. It is completely legitimate. You know कि अगर आपके पैसे इस तरफ जा रहे हैं, अगर आप contribute कर रहे हो, जो कि ज़रूर करना चाहिए, then you can satisfy yourself with the feeling that this will help a child somewhere, somehow. This is helping a kid. You know. I think there's a sense of fulfillment, of course, definitely इसके साथ हो. And अच्छा, I also think it's also very important to talk about कि आप भी एक celebrity होते हो. There is a lot of onus of responsibility on you because you have the mass media की you know the reach, the appeal and everything, audience वगैरह, everything is you know looking up to you. तो यू हैव अ प्लेटफॉर्म, सो आप बहुत सारे लोगों के माइंड्स चेंज कर सकते हो. आई मीन हम जब अपने सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, हमने पहले भी एक उनके जेंडर स्कूल की बात की थी, वो अजीब वो गरीब कॉन्ट्रोवर्शियल जो कमेंट्स हर वक्त देते रहते हैं, उससे ये बहुत बेहतर है कि आई मीन इफ़ यू आर यू नो इन सम वे हेल्पिंग आउट पीपल इन अ यू नो इन अ मोर you know in a more materialized way. हाँ, it's better. ठीक हो गया. अच्छा, तो अब बताओ. मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ बात करना चाहती हूँ कि बिसाइड्स आपने जो बात की है, आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन कि अगर आपने टैक्स पे भी करना है IMF को,
तो आपको क्यों लगता है कि स्कूल के बच्चों के अंदर के जो है किताबें चार्ज करने से आपको ये नहीं समझ आ रही कि ऑलरेडी माँ बाप बहाना ढूंढ रहे हैं इस मुल्क के अंदर कि वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दें, क्योंकि उनके पास रोजी रोटी नहीं है, खाने की पैसे नहीं है, उनके पास कोई कमाने वाला नहीं है उनके घर पे। लाइक आप हमने स्टूपिड हो। हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना एजुकेशन। आई मीन शहजाद रॉय का तो काम नहीं बनता ना यहाँ पे आके एनजीओ खोले और इस किस्म की चीजें। ये तो गवर्नमेंट से इनिशिएटिव इज मिसिंग। गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट अपलॉडिंग हिम एंड सेइंग कि हाँ अच्छा हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो गवर्नमेंट को खुद सोचने की बात थी ना। द गवर्नमेंट डज नॉट थिंक अबाउट दीस थिंग्स बिकॉज ये उसकी टॉप प्रायोरिटी पे है ही नहीं। वो चाहते ही नहीं आप पढ़े, वो चाहते हैं आप नालायक रहे ताकि आप वो चौधरी बने रहे, आप उनकी जूतियां साफ करते रहे, बस दैट्स इट। जो भी मतलब वो आप भी चाहते पढ़ने हैं जाएंगे तो जूतियां कौन साफ करेगा भाई, घर कौन? they're still doing it in a bad way. There's definitely much more effective ways to manipulate people. This is just dumb business, honestly. This is like you're basically making it very obvious that the government does not care about the kids. When Imran Khan came and he changed all the syllabus, साइंस की किताबें उर्दू में लिखी हुई हैं। साइंस उर्दू में कौन पढ़ता है टिल द 6th 7th 8th ग्रेड? ये कौन लोग हैं? That was another headache. वो एक और next level की headache थी. I mean, let's not even talk about that. नहीं, we will talk about it. We will talk about the smart people making policy for us. Amna, you have no idea. It was so challenging. It was so damn challenging because जिस टीचर ने पढ़ाना है साइंस उर्दू में, उसने खुद कभी नहीं पढ़ा साइंस उर्दू में। जिस माँ ने हेल्प करके बच्चे को पढ़ाना है, उसने कभी नहीं पढ़ा। एंड इट इज सो कॉम्प्लेक्स एट, आई मीन आप इसको इनिशिएट करते, मैं ये नहीं कहती उर्दू में नहीं होना चाहिए, अच्छा आपका दिल करता है आप उर्दू में करें तो आप कर लें यार, लेकिन इट शुड कम आराम आराम से, स्लोली, सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम एंड इट्स नॉट हर चीज उर्दू में होगी, हर चीज उर्दू में होगी। इट वाज सच अ हेडेक, इट वाज सच अ हेडेक के मतलब एंड पे दिल करता था कि यार व्हाट टू डू, द टीचर नोज नथिंग, यू नो नथिंग। उसके अंदर ऐसे लफ्ज थे, मोटे मोटे लफ्ज थे जो आपको मतलब कि मुझे खुद नहीं समझ लगती थी यार मैं इनको क्या पढ़ाऊं। मतलब कि दो लोग हैं ना जो बच्चे पढ़ा रहे हैं। ने तो कहा था कि निकल जाओ इधर से, हम नहीं बदल रहे। उन्होंने सिलेबस भी नहीं चेंज किया, आपको उन्होंने चेंज भी नहीं किया। नहीं, आपको पता है बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने भी नहीं किया। आई मीन व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने कहा कि ये किताबें आपने लेनी है, उन्होंने माशरती उलूम की, फलानी टिंगी सब किताबें उन्होंने कहा आपने लेनी है। हमने वो किताबें ली एंड देन दे सेड कि नो, हमारे असल रिसोर्स पैक्स जो है ना वो हम स्कूल में रखेंगे और वो इंग्लिश में ही होंगे। एंड आई मीन दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग बिकॉज देयर स्टक ना। वो कहाँ से रिसोर्सेज लाए जिन्होंने उर्दू में साइंस पढ़ी हुई है? कौन लेकर आएगा? कहाँ से ये लोग पैदा होंगे? या तो आपने पहले लोग ट्रेन किए हों। जिस माँ ने पढ़ाना है उसको नहीं पता कि मैंने क्या कराना है। तो मतलब कि एवरीबडी इज, आई मीन मेरी उम्र नहीं है ना मैं ये चीजें सीखूं यार। मैंने तो अब आगे वाला कोई और अपना काम करना है, अगर मैं ये पढ़ना शुरू कर दूंगी तो फिर मेरा काम कौन करेगा? सो आई मीन इट्स द आइडिया ऑफ एन एजुकेटेड मदर इज टू हेल्प देयर चिल्ड्रन। मैं तो अपने आप को उस टाइम पे हेल्प नहीं कर सक रही थी। सो इट वाज अ न्यूसेंस फॉर मी एज अ मदर। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इतनी लायक हूँ कि मैं अपने बच्चों को मदद नहीं कर सकती बिकॉज द आइडिया इज कि माँ ने मदद करानी है या टीचर ने मदद करानी है, दोनों ऐसे बैठ के एक दूसरे की शक्ल देखने अब हम क्या करें। एंड ऑफ कोर्स जो स्कूल्स थे वो बैकडोर पॉलिसीज ढूंढ रहे थे कि अच्छा हम क्या करें। और कुछ जो बहुत ही मुहब्बे वतन किस्म के स्कूल से उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इसी तरह करेंगे, आप जो मर्जी करें। तो बस it was a very sad state of affairs. It's very unfortunate. No, it was very hard. I know because I saw a lot of mothers struggle as well. The father never steps in to teach their kids. It's always on the mother. You have to teach your kid, and let's not pretend like this is something like this is the truth. This is what happens in every household. The mother teaches the child. मतलब देखो ना आमना, आपने पिछले 70 साल में 80 साल में पाकिस्तान की जब से बना है आपने उर्दू को निगलेक्ट किया है, फिर आप उर्दू को ला के सबसे ऊपर खड़ा कर देते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं उसको एकदम से कोप अप करना शुरू कर देंगे ओवरनाइट। इट डजंट हैपन लाइक दैट ना। इट्स सपोज्ड टू बी वेरी सिस्टमैटिक। तो वो आई थिंक बहुत प्रॉब्लमेटिक था एंड इट वाज अ नाइटमेयर। I'm so sorry but सीरियसली अगर शहजाद रॉय ना होता तो फिर ना ये मसला आगे भी
follow through ही करेगा. मतलब कि अभी तक भी there are some schools, I don't know if they've completely removed this policy. I don't think so. नहीं, अभी भी कुछ स्कूल जो है आई थिंक फॉलो, आई हैव नो आइडिया. हाँ. आई मीन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने तो बंद कर दिया हुआ है. बट आई मीन उर्दू का तो एक ये मसला था यार. उसके अलावा देयर इज अ सिलेबस इज सो प्रॉब्लमैटिक. मतलब कि दे वुड शो पीपल इन सर्टेन रोल्स दैट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर मी एज अ वुमन. एंड देन certain चीजें थी उसके अंदर that were problematic. I mean आप उस चीज को तो देखती नहीं, आपके करिकुलम क्या है. आपको ये मुसीबत पड़ी हुई है एक नई किस्म की कि भाई उर्दू में ही पढ़ाना है. तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसका आपको you're not able to understand what you're studying और आपके लिए बोझ ही बन जाए. तो Exactly. तो एक आई थिंक वो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो चीज थी उस टाइम पर. But thank God we put that behind us और हम उससे आगे निकल आए हैं. But and even if you think about that curriculum, उसमें जो मैथ्स था वो काफी ज्यादा मतलब कि प्राइवेट स्कूल को इंस्टेड ऑफ आप अपने गवर्नमेंट स्कूल से स्टैंडर्ड रेज करें. आपने कहा कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल में ये पढ़ाया जाता है तो आपका प्राइवेट स्कूल भी यही पढ़ाएगा. सो दैट वाज लाइक अ वेरी लो लेवल फॉर देम. सो बच्चों को इंस्टेड ऑफ लर्निंग दे वुड जस्ट व्हाट आर वी डूइंग. तो वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक था कि हर एक को एसएनसी की किताबें थी, सिंगल नेशनल करिकुलम की किताबें लग गई थी एंड सो ऑन. आई मीन दैट वाज स्ट्रेंज. It is very strange. सबसे पहले ये बात के like आप जो है वो किताबों का सिलेबस इंटरप्रेट करके ही गवर्नमेंट स्कूल्स को दे सकते थे. You could have just taken like CIEs. You could have taken the syllabus and the course. You could have understood it. You could have reinterpreted it according to a level that the government schools could manage. But you never did that. Instead, आपने जो है सबको ही जो है एक mind boggling डाउनग्रेड करने की डाल कोशिश दिया. कर रही है. हाँ. डाउनग्रेड करने की कोशिश किया. and it was unfortunate because उस टाइम ना कोविड चल रहा था. people were already home stuck and टेक्नोलॉजी का मसले चल रहे थे. इंटरनेट चाहिए, हर घर में डिवाइस भी नहीं थी. अब ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आई मीन 4 लोग हैं तो 4 डिवाइसेस चाहिए, हर बंदे को अपनी अपनी चाहिए. सो दैट वाज वेरी troublesome times and this was another burden at that time. एडेड किस्म का था ना, एक हेडेक. स्कूल्स बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, अब नाके लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कर्फ्यूज लग रहे हैं. बट दिस वाज एडिंग मोर टू द वरीज. बट ये है कि आई थिंक एजुकेशन सेक्टर में हमारी ऐसा कोई हलचल होती नहीं है. वो टाइम था जिसमें बड़ा एक ना हलचल मचा करती थी कि यार ये क्या हो गया, अब क्या हो गया. सो एग्जैक्टली डेफिनेटली बड़ा हैपनिंग किस्म का हमारा एजुकेशन सेक्टर हो गया था उस टाइम पर. बट ये है कि आई थिंक के जो शहजाद रॉय है उसके इनिशिएटिव्स बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं और उसने शुरू से ही ना ही हैज टोड द लाइन ऑफ लीडिंग द नेशन, एजुकेटिंग द masses एंड पब्लिक सर्विस वाला जो उसका एक वो है ना द होल द ऑरा. आई थिंक दैट रियली वर्क्स फॉर हिम. And I think it's marvelous. I mean, I've not met people from Danish school. Danish school आपको पता है ना ये नून लीग वालों का है. So I've not met anybody from that school, but I have met people from जो शहजाद रॉय के स्कूल में जाते रहे हैं. They've been paid and they're really happy about the school. And on that note, I'm just going to close it here. Thank you everybody who are watching. Do write to us and let us know what you think about Shahzad Roy and his schools and the initiatives that he takes. About school में tax, books पे tax नहीं होना चाहिए, teachers की जो तनख्वाहें उन पे tax नहीं होना चाहिए, and so on. And we'll definitely look up the comments. Thank you so much for joining. Allah Hafiz.